জাতীয় শিক্ষানীতি কবে থেকে চালু হবে? কোন বছর থেকে নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী পড়াশুনো চালু হবে? কিভাবে পাঠ্যক্রম তৈরি হবে? কিভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি বলবৎ হবে? এই নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা বিভিন্ন সময় তোমরা করছো, সেই নিয়ে বিস্তারিত এই প্রতিবেদন। তার আগে বেঙ্গলি ক্লাসরুম তোমাদের সকলের প্রিয় চ্যানেল, এই চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আজ শিক্ষা পর্বের সম্মেলনে বিস্তারিত জানালেন। কয়েকটি পর্বে যদি আমরা ভাগ করে নিই তাহলে খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারবো। অবশ্যই তোমাদের জানাবো যে প্রধানমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী কোন বছর থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হচ্ছে। প্রথমত, মজার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে শিখতে পারে, এটা তার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিবেদনের শেষে তার বক্তৃতার লাইভ অংশ কিছুটা অংশ দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নিও। শিক্ষার্থী যেন মজার সঙ্গে শিখতে পারে। স্কুল ছুট বন্ধ করতে হবে। স্কুল ছুট অনেক বন্ধ হয়েছে, এটা সত্য, কিন্তু আবার পাশাপাশি এটাও সত্য শিক্ষার্থী নিজের পছন্দ মতো সাবজেক্ট নিতে পারতো না। শিক্ষার্থী যাতে নিজের পছন্দ মতো সাবজেক্ট নিতে পারে সেই জন্য কিন্তু এখন সায়েন্স, আর্টস, কমার্স ভেঙে তুমি তোমার মতো করে সাবজেক্ট নিতে পারো। এক্ষেত্রে একটা বড় প্রতিবন্ধকতা, সেটা হচ্ছে নতুন পাঠ্যক্রমে বা নতুন ব্যবস্থায় প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থের জোগান কোথা থেকে আসবে? অর্থাৎ তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন যে নতুনভাবে ঢেলে পাঠ্যক্রম সাজানো হচ্ছে, শিক্ষা পদ্ধতি সাজানো হচ্ছে এবং এই সম্পূর্ণ কাজটা শুরু হবে 2022 থেকে। তার মানে কি তোমরা যারা এবার মাধ্যমিক দিচ্ছ বা সামনে তারপরের বার যারা মাধ্যমিক দেবে তারা ভয় পাচ্ছ? না, দেখো, যে কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হোক বা যে কোনো শিক্ষানীতি চালু হোক, সেটা কিন্তু একদম গোড়া থেকে হতে 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 আসে। তোমরা নিজেরাই জানো জাতীয় শিক্ষানীতির যে নতুন স্ট্রাকচার করা হয়েছে সেটা প্রথমে কিন্তু 5 অর্থাৎ 3 বছর প্রি প্রাইমারি পড়বে ছেলেমেয়েরা, তারপরে 1, 2, তারপরে 3, তারপরে 3+4, তারপরে হচ্ছে 3, 4, 5, তারপরে হচ্ছে 6, 7, 8, তারপর 9, 10, 11, 12। বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যসূচির ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আরোহণ করুক, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখুক। অর্থাৎ যে হাতে কলমের শিক্ষা কথা মনস্তাত্ত্বিকরা বলে আসছেন, যদি জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণভাবে সঠিকভাবে করা যায় তাহলে হাতে কলমের শিক্ষার কিন্তু একটা সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে। যদি পরিকাঠামো সব ভালো থাকে তাহলে এই হাতে কলমের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বাড়বে, সৃজনশীলতা বাড়বে, তাদের পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মাবে, আনন্দের সঙ্গে তারা পড়বে বলে বক্তৃতায় জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এবং যদি এটা সঠিকভাবে করা যায় তাহলে যখন ছেলেমেয়েরা আনন্দের সঙ্গে মজার সঙ্গে পড়বে তখন কিন্তু স্কুল ছুটটাও বন্ধ করা যাবে। তিনি পরিষ্কার জানাচ্ছেন যে মার্কশিটটা স্টুডেন্টের কাছে একটা চাপের বিষয় হয়ে যায় আর পরিবারের কাছে একটা প্রেস্টিজ শিটে পরিণত হয়েছে আজকে। কেন হবে? তার জন্য তিনি জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর জোর দেওয়ার জন্য বারে বারে কিন্তু জানিয়েছেন। মাল্টিপল এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট, এই এক নতুন পদ্ধতি তিনি চালু করতে চাইছেন জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে। এর ফলে কী হবে? যে ছাত্র বা ছাত্রী যে বছর স্কুলটা বন্ধ করলো বা যেখানে শিক্ষাটা বন্ধ করলো, সে যদি চায় 1 বছর 2 বছর বাদে সেখান থেকেই আবার শুরু করতে পারবে। বিজ্ঞানমুখী এই জাতীয় শিক্ষানীতি যদি এখন কিভাবে কোন 2022 থেকে কোন কোন ক্লাস কিভাবে বলবৎ শুরু হয়, এবং অবশ্যই এটা একদম প্রাইমারি সেকশন থেকে শুরু হবে। সুতরাং শিক্ষার্থী তোমাদের কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তোমরা আরামসে কয়েকবার মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক তো দিতেই পারছো। জাতীয় শিক্ষানীতি বিভিন্ন ভাষার ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। তোমরা প্রধানমন্ত্রীর লাইভ যে বক্তৃতা এবার সেটা দেখে নাও। আশা করি তোমাদের নানা প্রশ্নের যে একটা ধোঁয়াশা ছিল, এই বছর থেকে চালু হবে না পরের বছর থেকে চালু হবে, মাধ্যমিক কি হবে না উচ্চ মাধ্যমিক কি হবে না হবে না, এই বিষয়ে কিন্তু মাথা থেকে সম্পূর্ণভাবে ফেলে দাও। মাধ্যমিক হচ্ছে, উচ্চ মাধ্যমিক হচ্ছে, জাতীয় শিক্ষানীতি 2022 থেকে চালু হবে, আবারও বলছি, এবং সেটা একদম প্রাইমারি সেকশন থেকে। সুতরাং মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে আসতে এখনো অনেক দেরি। খুব ভালো দেখো। इसी तरह हॉस्पिटल्स की, फायर स्टेशन की या फिर दूसरी किसी जगह की विजिट भी
लर्निंग का हिस्सा हो सकती है। बच्चों को ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, उनको पता चलेगा डॉक्टर भी कितने प्रकार के होते हैं, डेंटिस्ट क्या होता है, आंख का हॉस्पिटल कैसा होता है, साधन देखा गया, आंख चेक करने का मशीन कैसा होता है, उसको जिज्ञासा, हाँ भाई ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, वो सीखेगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी तरह तैयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और फंडामेंटल चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। लर्निंग को इंटीग्रेटेड एवं इंटरडिसिप्लिनरी, फन बेस और कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाने के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि 2022 में जब हम आजादी के 75 वर्ष मनाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स इस नए करिकुलम के साथ ही नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे। ये भी फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर रेडी और साइंटिफिक करिकुलम होगा। इसके लिए सभी के सुझाव लिए जाएंगे और सभी के सुझाव और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इसमें समाहित किया जाएगा। साथियों, भविष्य की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है। हम इसकी जरूरतों को अभी से देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ऐसे में हमें अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है। ये 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होगी? ये होगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। हमारे स्टूडेंट्स सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल साइंस को समझे, उस दिशा में सोचे, ये सब आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। और इसलिए छात्र शुरुआत से ही कोडिंग सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस और रोबोटिक्स, इससे जुड़े सारी बातों को भी उसके परिचय में उसको लाना होगा, हमें इसको देखना होगा। साथियों, हमारी पहले की जो शिक्षा नीति रही है उसने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बांध भी दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पर लें तो विद्यार्थी साइंस लेता है, वो आर्ट्स या कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए मान लिया गया कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये साइंस नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में, हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है कि केवल एक ही फील्ड की जानकारी से सारे काम हो जाएंगे? हकीकत में सभी विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हर लर्निंग इंटर रिलेटेड है। स्टूडेंट्स कोई एक विषय ले लेते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि वो दूसरे किसी क्षेत्र में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था बदलाव का, नई संभावनाओं से जुड़ने का अवसर ही नहीं देता। बहुत से बच्चों के ड्रॉप आउट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को कोई भी विषय चुनने की आजादी दी गई है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़े सुधार के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। अब हमारे यहां युवा को साइंस, ह्यूमैनिटी,
या कॉमर्स में से किसी एक ब्रैकेट में फिट होने की जरूरत नहीं है। देश के हर स्टूडेंट्स को उसकी प्रतिभाओं को अब पूरा मौका मिलेगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक और बहुत बड़ी समस्या को भी एड्रेस करती है। यहां तो बड़े बड़े अनुभवी और जानकार लोग मेरे सामने उपस्थित है। आपने जरूर महसूस किया होगा कि हमारे देश में लर्निंग ड्रिवन एजुकेशन की जगह, कोई बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत है आज स्थिति यह है, मार्क्स और मार्कशीट ये एजुकेशन हावी है। लर्न तो बच्चे तब भी कर रहे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं, जब वो बाहर आपके साथ घूमने जाते हैं। लेकिन अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा, बेटी तुमने क्या सीखा, नहीं पूछते हैं। पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं कि मार्क्स कितने आए। हर चीज वहीं जाकर के अटक जाती है। कुछ परिवार हैं जिनको आदत हो गई, पूछते हैं अच्छा आज स्कूल में खाना क्या मिला था। इन्हीं चीजों के आसपास टेस्ट में नंबर कितने नंबर आए, एक टेस्ट एक मार्कशीट, क्या बच्चों के सीखने की, उनकी मानसिक विकास के पैरामीटर हो सकती है? आज सच्चाई ये है कि मार्कशीट मानसिक प्रेशर शीट बन गई है और परिवार की प्रेस्टीज शीट बन गई है। परिवार के लिए प्रेस्टीज शीट है, बच्चे के लिए प्रेशर शीट है। पढ़ाई से मिल रहे इस तनाव को, मेंटल स्ट्रेस से अपने बच्चों को निकालना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर इसका बेवजह का दबाव न पड़े और कोशिश ये है कि केवल एक परीक्षा से छात्र छात्राओं का मूल्यांकन न किया जाए, बल्कि सेल्फ असेसमेंट, पीयर टू पीयर असेसमेंट, ये छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मार्कशीट की वजह, उसकी जगह होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इस पर बल दिया गया, इसकी बात कही गई है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों के यूनिक पोटेंशियल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, टैलेंट, स्किल्स, एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी और पॉसिबिलिटी की डिटेल शीट होगी। मूल्यांकन प्रणाली के में संपूर्ण सुधार के लिए एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना भी की जाएगी। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी, इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। यहां हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। किताबी पढ़ाई में फंसे कुछ लोग ये फर्क ही भूल जाते हैं और इसलिए जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके, चीजें लर्न कर सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए। ये देखना जरूरी है कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं क्या वो समझ पा रहा है,
समझ रहा तो कितनी आसानी से समझ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विषय से ज्यादा बच्चे की ऊर्जा भाषा को समझने में ही खप रही है। নমস্কার বন্ধুরা, এসে গেছি আমি সোনু। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুবই ভালো লেগেছে। এরকম ভিডিও যদি আরও দেখতে চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব করো, যাতে রোজ আমার সঙ্গে তোমরা দেখা করতে পারো। আর হ্যাঁ, লাইক করতে কিন্তু ভুলো না, আর অবশ্যই নিজের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো।